Welcome to Think Like UPSC. Let's proceed with the second question. It states that discuss the changing equation of sociology with other social science. So yes, basically we have to state what is the basic equation between the sociology in context with other social science subjects like sociology as anthropology, psychology, political science, history, or even economics. ठीक है, तो first we will say sociology has always maintained a dynamic relationship with the other social sciences such as history, political science, or economics and anthropology and psychology. Initially, when sociology borrowed heavily from them, and over time it developed its own methods but continues to इंटरसेक्ट बेसिकली उसमें हमें जैसे काफ़ी सारे ना रिलेशंस मिलते हैं जो हमें साइकोलॉजी में देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं, वो हमने एज इट इज़ उठा रखे हैं तो स्टडी ऑफ सोसाइटी में. बॉडी विल जस्ट से इलेबोरेट पॉइंट्स हम सबसे पहले डायग्राम इसके बेसिस बना सकते हैं लाइक सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बेसिस पे, देन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस लाइक सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड psychology and sociology and philosophy. ठीक है, and then we will explain it. early sociology In early sociology when we deal it, so we start saying that उस time पे Max and Weber used the historical data. They both used the historical data. Weberian Protestant ethics linked religion and capitalist through a history. And when we talk about Fernand Braudel's analysis school blurred बाउंड्रीज बिटवीन द हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी. तो टुडे हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी जैसे एग्जाम्पल है होता है चार्ल्स टिलीज वर्क ऑन रिवॉल्यूशन. व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी एंड द पॉलिटिकल साइंस वी से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडीज पावर, स्टेट एंड लेजिटिमेसी. वेबर का यहाँ पे अथॉरिटी टाइप को हम कोट कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और रिलेशनल लीगल. मार्क्स को हम यहाँ पे कोट करेंगे विल से स्टेट एज इंस्ट्रूमेंटल ऑफ क्लास डोमिनेशन. कंटेम्प्रेरी लिंक में विल से कि स्टडी ऑफ अ सोशल मूवमेंट, वोटिंग बिहेवियर. व्हेन वी टॉक अबाउट sociology and economics, here we can say classical economics focused on wealth, sociology adds social context. यहाँ पे proletariat and bourgeois की थ्योरी हम डाल सकते हैं as per Marx. यहाँ पे integrated economics in the class analysis, and Weber का studied economic behavior shaped by culture, Protestant ethics. and today economic sociology जहाँ पे आज की डेट में जब हम फोकस करते हैं तो ग्रैंड वोटर embeddedness of the markets in the social relation. When we talk about sociology and anthropology, here we can say both study culture, kinship and community. Because basically anthropology क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन कल्चर को पढ़ा जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट. तो वही चीज सोशियोलॉजी भी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है, ह्यूमन के कल्चर को पढ़ती है. दिस इज वाई वी हैव सेड दैट बोथ स्टडी कल्चर, किनशिप एंड community. So in India, G.S. Ghurye combined anthropological methods with the sociological analysis of caste. Earlier distinction जहाँ पे हम बोलेंगे anthropology studies primitive societies, sociology studies modern ones, and now converging into a social anthropology. When we talk about sociology and psychology, the social psychology links individual behavior to a group influence. MED को यहाँ पे कोट करेंगे तो he will say कि self developed through a social interaction. Durkheim, he rejected a purely psychological explanation of a society stressing a social fact because he as per Durkheim everything is like जो कुछ भी हुआ है संसार में, जो कुछ हो रहा है, it's duty of what social fact से बढ़ के कुछ नहीं है. सोसाइटी सामने वाला अपने आप से नहीं करता, there are some other influence, other factors which are responsible for that thing. So next is sociology because इनकी जो थ्योरी है ना वो dwell करती है, आसपास घूमती रहती है सोशल फैक्ट के आसपास ही, कि समाज ही सबसे ऊपर है, इसका ही किया धरा है सब कुछ. ठीक है, और ये आज के कंटेस्ट में भी आप लगा सकते हो. रिसेंट केस में जो निक्की मर्डर केस है उसको आप यहाँ पे आराम से एग्जांपल में कोट कर सकते हो अगर ये इस ईयर क्वेश्चन में मतलब मेंस के क्वेश्चन में आया होता तो यू कैन से राइटली. तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी व्हेन वी से तो philosophical roots है हमारे हॉब्स एंड रोसे एंड कांत को. विल से टुडे सोशियोलॉजी डिफर बाय बीइंग एम्पेरिकल बट स्टिल डील्स विद द वैल्यू, एथिक्स एंड रेशनैलिटी. इन डिसिप्लिनरी ट्रेंड्स है हमारे, डेवलपमेंट स्टडीज कंबाइन करती हैं इकोनॉमिक्स
सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस को एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी बोरो करती है फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी से, एंड डिजिटल सोशियोलॉजी ओवरलैप करती है विद कम्युनिकेशन स्टडीज एंड ग्लोबलाइजेशन. एंड जब व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट में विल से सोशल साइंस आर कन्वर्जिंग टू स्टडी ट्रांसनेशनल इश्यूज लाइक माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, मतलब ट्रांसनेशनल इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंडियन कंटेक्स्ट, सोशियोलॉजी इन इंडिया ओवरलैप विद एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे ट्राइबल स्टडीज एज वेल एज इकोनॉमिक के बेसिस पे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल साइंस के बेस पे कास्ट एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं. एग्जाम्पल विल से एम.एन. श्रीनिवास यूज एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क टू अंडरस्टैंड कास्ट इन इंडियन विलेजेस. एंड व्हेन वी विल से चेंजिंग इक्वेशन फ्रॉम सेपरेशन टू डायलॉग एंड इंटरडिसिप्लिनरिटी. द बाउंड्रीज आर क्या है, इंक्रीजिंगली ब्लर्ड होती जा रही है. सोशियोलॉजी क्या कर रही है, एक एक्ट as a bridge disciplines, and critics may will say, critics say that sociology risk losing autonomy if too interdisciplinary रहती है, तो वो अपनी ऑटोमेसी खो देती है. पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू करते हैं डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज आर आर्टिफिशियल है, रेस्ट्रिक्टिव है. बाउंड्रीज कैसी आर्टिफिशियल है, रेस्ट्रिक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, ये एज पर सोशियोलॉजी में पूरी तरह से फिट नहीं होती. कंक्लूजन विल से कि द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी with other social sciences have evolved from borrowing concept to establish interdisciplinary dialogue. In today's complex world, sociology thrives as a connector, disciplined, linked economics, political history and culture to provide holistical understanding of society. Next question states that examine the basic postulates of positivism and post-positivism. I think this topic I have already covered. So first here what we say, as per positivism में हमारे हैं अगस्त कॉम्टे, डर्कहाइम, ये अप्लाई करेंगे इन दोनों को. अगस्त कॉम्टे एंड डर्कहाइम both are like basically eminent sociologists, so applied both methods of natural sciences to society. Post positivism emerged later as a critics arguing for किसके लिए आर्ग्यू किया, इन्होंने आर्ग्यू किया रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए एंड सब्जेक्टिविटी इन नॉलेज. विल से कि पॉजिटिविज्म में लाइक लॉ लाइक रेगुलेशन होना चाहिए एज पर अगस्त कॉम्टे एंड डर्कहाइम. तो लॉ लाइक रेगुलरिटी, सोसाइटी गवर्न होनी चाहिए बाय लॉ लाइक नेचुरल साइंस की तरह, एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें. रिसर्च मस्ट रिमेन न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए. फैक्ट सेपरेट्स होने चाहिए फ्रॉम वैल्यूज, वैल्यू न्यूट्रलिटी रिसर्च में दिखनी चाहिए. एम्पेरिसिज्म जहां पे नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन एंड मेजरमेंट इंस्टेड ऑफ बाइस्ड वन. कैजुअलिटी की बात जब हम करते हैं तो हियर आइडेंटिटी कैजुअल इफेक्टिव रिलेशन. एग्जांपल डर्कहाइम की सुसाइड की जो थ्योरी है लिंक्ड विद द सोशल इंटरेक्शन विद सोसाइटल रेट्स. क्वांटिटेटिव मेथड्स की जब हम बात करते हैं, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सर्वे एंड डेटा, सर्वे रिपोर्ट्स एंड ऑल. एंड यहाँ पे डिटरमिनिज्म लाइक हियर वी विल से कि सोशल फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट फ्री विल, वो फ्री विल नहीं है. पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्ल पॉपर, कुन and Anthony Giddens, and then you can say Feyerabend. So you can quote any of these four or you can quote any three thinkers. ठीक है, बट आप एक दो तीन तो thinkers quote कर सकते हो. तो here you will say कि fallibilism as per इन द फैलिबिलिस्ट पोर्शन ही विल से नो एब्सोल्यूट ट्रूथ. ऐसा कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है. नॉलेज एक प्रोविजनल है जहां पे कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन थ्योरी है उनकी, तो उसको हम कोट कर देंगे. कंटेक्स्ट में डिपेंडेंस जब हम दिखाएंगे, थॉमस कुन को वी विल कोट हिम. विल से साइंस प्रोग्रेसेस कर रही है थ्रू द पैराडिज्म शिफ्ट से, नॉट क्यूमुलेटिव लॉज में. क्रिटिकल रियलिज्म जब हम देखेंगे, भास्कर ने लिखा है यहाँ पे कि रियलिटी एग्जिस्ट बट कैन ओनली बी इम्परफेक्टली नोन. रिफ्लेक्सिबिलिटी में एंथनी गिडन ने बोला है कि रिसर्चर्स एंड सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर. रिसर्चर भी इन्फ्लुएंस करता है एज वेल एज द सब्जेक्ट जिसमें रिसर्चर को इंटरेस्ट होगा. अब सपोज मुझे इंटरेस्ट नहीं है साइकोलॉजी में सपोज, तो वो मैं उस वाली फील्ड में नहीं जाऊंगी. तो इसका मतलब क्या है कि रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं ईच अदर्स को. तो मिक्स्ड मेथड्स में व्हेन वी से कि कंबाइंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव्स एंड प्रोबेबिलिस्टिक नॉलेज में जब हम बोलेंगे तो विल से कि सोशल फिनोमेना कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, ओनली प्रोबेबिलिटी. सो इन एग्जाम्पल विल से पॉजिटिविज्म की थ्योरी कोट करेंगे डर्कहाइम की, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे के बारे में बात करेंगे, लाइक सोशल फैक्ट्स की वजह से सुसाइड हो रहा है, डर्कहाइम की सुसाइड की थ्योरी बोलती है. एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात बोलते हैं तो एंथनी गिडन
स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दे बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिबिलिटी वाली थ्योरी बताएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। एंड क्रिटिक्स हमारे आ जाते हैं यहाँ पे, पॉजिटिविज्म क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इग्नोरिंग मीनिंग, एजेंसी एंड कंटेक्स्ट में। पोस्ट पॉजिटिविज्म किस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसाइज इनको किया जाएगा फॉर एक्सेसिव रिलेटिविज्म, इनको सब चीज में रिलेटिविज्म चाहिए, लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर है सब जगह। तो कंक्लूजन वी से पॉजिटिविज्म प्रोवाइडेड सोशियोलॉजी विद अ साइंटिफिक फाउंडेशन, बट पोस्ट पॉजिटिविज्म एनरिच्ड इट बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी दे दी, उसमें प्रोबेबिलिटी दे दी, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी, बोथ रिमेन है, दोनों ही आज की मतलब कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए बोथ आर रिलेवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है इलैबोरेट द मेन टेनेंट्स ऑफ इंटरप्रिटेटिव perspective in sociology, and this is a 10 marker question. Here will say what is interpretative sociology, क्या है पे सबसे पहले बताएंगे। interpretative sociology emerge कैसे होती है, as a reaction of positivism, अगस्त कॉम्टे डर्कहाइम, you can say, and it emphasize on understanding, जैसे डर्कहाइम की Verstehen theory, you will say Verstehen of a subject meaning people attached to action. So here you will say Weber की theory बोलोगे, Verstehen की, sorry, Verstehen is a theory of a Weber, you will quote कि Weber's Verstehen थ्योरी सेंट्रल आइडिया रहेगा, सोशियोलॉजी शुड ग्रेस्प मीनिंग, इंडिविजुअल गिव टू एक्शन, सब्जेक्टिविटी विल से कि human being are meaning making unlike object in natural sciences. Symbolic interactionism will say Mad and Bloomer, they quoted the individual act based on meaning derived from interaction. Example will say handshake, like greeting in one context and insult in another context. Like मैं अभी एक कमिट साथ में सबके साथ में बैठी हूँ और अचानक से मेरी आंख बंद हो जाती है, that is a different thing. और उसके मतलब मैं अपनी आंख बंद कर रही हूँ, जान के एक आंख बंद कर रही हूँ, और वह मैं कमेंट पास करने के बेसिस पे आंख मार रही हूँ किसी को, दैट इज अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट विल से फिनोमेनोलॉजी कुछ ये बोलेंगे कि फोकस ऑन एवरीडे लाइफ वर्ल्ड्स इंटरसब्जेक्टिविटी। एथनोमेथोलॉजी में हम विल से ग्राम फिंकन ही सेड दैट स्टडीज एवरीबडी एवरीडे प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स पीपल यूज टू सस्टेन सोशल ऑर्डर। Hermeneutics, interpretations of text, symbols and practices to understand culture. Agency centric approach में you will say unlike structural theories stresses actors role in shaping society. Qualitative methods, participants observation, ethnography, in-depth interviews. Example Clifford, Grids, thick descriptions of belliness, cockfight, and Becker's study of marijuana users, जहाँ पे becoming a marijuana यूजर हो गया। थिंकर वे हमने कोट कर दिए, काफ़ी सारे थिंकर ले लिए हमने, वेबर, मैड, स्कोट, ग्राम फिंकलन, बर्जर एंड लुकमैन। और लुकमैन ये काफ़ी दोनों ही काफ़ी एमिनेंट थिंकर्स रहे हैं। आप आगे बोलोगे कि क्रिटिक्स में विल से ओवर एम्फसाइजेशन किया गया है किस पे, माइक्रो लेवल पे, एज वेल एज नेग्लेक्ट कर दिया इसने स्ट्रक्चर्स पे, लाइक क्लास कास्ट पेट्रियार्की। एंड रिस्क ऑफ रिलेटिविज्म हमने देखा है यहाँ पे, नो यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, कोई यूनिवर्सल नहीं दिया गया, लाइक जैसे साइंस में थ्योरी कोई भी रिजल्ट हो एसिड बेस का ना, लाइक इससे लेके यहाँ तक का जो नंबर है 2 से लेके 0 से लेके 7 तक, लाइक 7 से ऊपर जा रहा है तो हाईली एसिडिक है, तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू इट लैक प्रिडिक्टिव पावर है, बहुत ही कम प्रिडिक्टिव पावर है। कंक्लूजन वी विल से कि द इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव एनरिच्ड सोशियोलॉजी बाय स्ट्रेसिंग मीनिंग, symbols and agency, while positivism focus करेंगे on laws. Interpretative sociology highlights the subjective dimension of social reality, making sociology more comprehensive. Okay, next हमारा क्वेश्चन बोलता है कि discuss the distinct sociological method adopted by Emile Durkheim in his study of suicide. So here Durkheim's Suicide 1897 is a landmark because it applies scientific method to deeply personal act के basis पे scientific methods को research को use करेंगे, and showing suicide is not merely an individual pathology but a social fact. His method made sociology distinct from a philosophy and psychology से इन्होंने अलग बता दिया। इन्होंने proper इसके basis पे कई points दिए हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे treating suicide as a social fact, जहाँ पे external to the individual cause and measurable
मेमोरेबल है. एग्जाम्पल डिफरेंसेस इन सुसाइड रेट्स बिटवीन अ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक एक्सप्लेन्ड बाय अ इंटीग्रेशन नॉट थीफ. ठीक है, नॉट बिलीफ बेसिकली. कंपैरेटिव मेथड्स में बोलेंगे कि लाइक कंपेयर्ड सुसाइड अक्रॉस रिलीजन, रीजन, मैरिटल स्टेटस, डिस्कवर्ड कंसिस्टेंट पैटर्न. जहां पे नॉर्मली इनको देखने को मिला तो सिंगल्स में सबसे ज्यादा आपको इनको यहाँ पे सुसाइड्स देखने को मिला था. प्लस जो रिलीजियस नहीं है, रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स एज पर रीजन वेरिएबिलिटी देखी थी. तो यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने यहाँ पे इन्होंने यूज किया था. फर्स्ट मेजर सोशियोलॉजिकल वर्क था ये, यूजिंग अ लार्ज स्केल ऑफिशियल डेटा एंड रिजेक्शन ऑफ अ साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को एकदम रिजेक्ट कर दिया था. इंडिविजुअल्स मेंटल इलनेस कांट बी एक्सप्लेन्ड in a group differences and social integration and regulation के बारे में he said that develop the concept of integration and regulation as कैजुअल फैक्टर्स. टाइप्स ऑफ सुसाइड उन्होंने दी थी. ईगोइस्टिक, लो इंटीग्रेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोटेस्टेंट्स के बीच में. एल्ट्रुइस्टिक्स, यहाँ ये आपको एक्सेसिव इंटीग्रेशन लाइक सोल्जर्स के बीच में. एनोमिक हियर लो रेगुलेशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस में. एंड फेटलिस्टिक ओवर रेगुलेशन प्रिजनर्स में. तो these were the 4 types of suicides theory which was given by Durkheim. Here objectivity and value neutrality, he focused on this thing. Maintain neutrality by focusing on social variable, not moral judgment. उन्होंने कोई moral judgment नहीं किया था, but he was totally leaned with total data, all the data which he had. Functional analysis में suicide indicated dysfunction of integration, regulation and regulation mechanism का disintegration दिखाया था, dysfunction दिखाया था. Macro sociological factors में focus में he said that looked at the society wide forces जहाँ पे religion, family, economy इस basis पे. लीगेसी के बारे में लाइक एस्टैब्लिश द सोशियोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट साइंस डिस्टिंक्ट एंड साइकोलॉजी. एग्जाम्पल्स है यू कैन से करंट के बेसिस पे. अब जैसे इंडिया के में भी काफ़ी रिसेंट बेसिस पे काफ़ी सारे हमने कुछ साइड केस देख लिए हैं रिसेंट पास्ट ईयर्स में. वी कैन ईजिली से लाइक अभी रिसेंट में फार्मर्स ने काफ़ी सुसाइड किया था. एंड यू कैन से फार्मर सुसाइड इन इंडिया एक्सप्लेन्ड एन एनोमिक सुसाइड ड्यू टू इनडेप्थनेस एंड फेल्ड रेगुलेशन in agriculture policies. When you next you can say Japan's salaryman suicides. Karoshi shows a fatalistic tendencies from a overwork. And WHO data released by WHO, it shows that suicide is now a global health crisis, making Durkheim's method still relevant. आज की डेट में भी Durkheim का जो मेथड है सोशल फैक्ट के ऊपर बोला था उन्होंने, इट इज स्टिल रिलेवेंट. तो क्रिटिक्स विल से व्हाट वाज डेफिनेटली हर थ्योरी को कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने के लिए आ ही जाएगा. तो यह इंटरप्रेटिविस्ट आते हैं. ये एटकिंसन ही विल से सुसाइड स्टैटिस्टिक्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट ऑब्जेक्टिव. कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशली एक कंस्ट्रक्ट अपने मायने मान लिया है. मार्क्सिस्ट ही से इग्नोर्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. मार्क्सिस्ट वाले हमेशा कैपिटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट मतलब कैपिटलिस्ट और हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में ही रहते हैं. तो ही विल जस्ट से कि ही इग्नोर्ड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज स्ट्रक्चरल कॉजेस. होता भी है ये. फेमिनिस्ट में यहाँ पे आ जाएंगे ये अगेन. जेंडर डिफरेंसेस इन सुसाइड वर अंडर एक्सप्लोर्ड. हाँ हुआ भी है, अंडर एक्सप्लोर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट विल से डर्कहाइम सुसाइड अप्लाइड इन a distinct sociological method, empirical, comparative and objective, and proved sociology could scientifically explain even a private acts. Despite critics, it remains foundation in showing the power of a social forces over individuals. Okay, let's proceed with the next question. Analyze the Marxian concept of a historical materialism as critics of a Hegelian dialectics. Okay, this is again 20 mark question, so we have to go around I think few more points and elaborated points also. So let's see. So here Marxian concept हमें पता है हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में बात हो रही है यहाँ पर. तो मेटेरियलिस्ट के बारे में बोल रहे हैं. तो विल फर्स्ट से Hegel's explained changes through a dialectics of ideas, thesis, antithesis, synthesis. Marx adopted the dialectical method but made it materialistic, arguing that material condition and class struggle, not abstract ideas,
ड्रिवन हिस्ट्री। यहाँ पे हेजल्स का आइडियलिज्म जो है, दिस सेज दैट हिस्ट्री एज अ प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट आइडियाज, एंड मार्क्स की जो थ्योरी है मटेरियलिस्टिक इन्वर्जन, इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ एक सामने वाले का कॉन्शियसनेस नहीं है, बल्कि दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग, बट देयर सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, डिटरमाइंस क्या करती है, पॉसिबिलिटीज ऑफ सोसाइटी। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप रिलेशन है, यहाँ पे क्लास डिवीजन देखने को मिलता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में व्हेन वी से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस प्लस रिलेशन, हियर फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वी विल से कि मोटर ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन प्रोड्यूस सिस रिवॉल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट। सुपरस्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक बेस एंड प्रोटेक्ट रूलिंग क्लासिक। स्टेज ऑफ हिस्ट्री में विल से प्रिमिटिव कम्युनलिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। क्रिटिक्स ऑफ हेजल में हेजल ओवर एम्फसाइज कर दिया इन्होंने आइडियाज ऑफ मार्क्स इंस्टेड ऑफ मटेरियल लाइफ कंडीशन इन प्राइमरी। जो क्योंकि मटेरियल लाइफ कंडीशन क्या थी, प्राइमरी सोर्सेस थे, बट इन्होंने उसको पूरा ओवर एम्फसाइज कर दिया। डायलेक्टिकल मेथड रिटेन रहते हैं आज की डेट में, बट फोकस्ड ऑन कॉन्ट्राडिक्शन इन मटेरियल प्रोडक्शन, जहां पे बोर्जॉइसेस वर्सेस प्रोलेटेरिएट्स रहते हैं। एग्जांपल में विल से करंट अफेयर से हम जितने भी एग्जांपल्स हमारे पास में, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नॉट आइडियाज नहीं थे, बट न्यू टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन, फैक्ट्री सिस्टम ड्रोव कैपिटलिज्म। जैसे कि इंडिया में, अगर इंडिया कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो जो आपके फार्मर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स रिच नहीं है, ओनली पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एंड एमपी इधर, एंड राजस्थान के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में ही उधर ही फार्मर्स रिच हैं। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस फार्मर्स आर नॉट दैट वेल रिच, क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यही इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट वील से रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में एक और एग्जाम वर्ल्ड से देते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में बेस्ड ऑन द क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे हुआ था। अगेन विल से कि प्रेजेंट डिबेट जो हो रहा है ऑन एआई रिप्लेसिंग लेबर के बारे में, जो अभी करंटली चल रहा है, शो अ कंटिन्यूड रिलेवेंस ऑफ अ मटेरियलिस्टिक एनालिसिस। इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो ऑक्सफॉर्म रिलीज करी थी 2023 में, यू विल से दैट शोज अ कंसंट्रेशन ऑफ अ वेल्थ एंड इकोइंग अ मार्क्स क्रिटिज्म। क्रिटिक्स में विल से कि वेबर का जो वेबर ने बोला कल्चर एंड आइडिया जो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स में कैन ऑल्सो शेप अ इकोनॉमी, ये भी एक इकोनॉमी को शेप कर सकते हैं। कल्चर एंड आइडियाज, जैसे कल्चर अभी जैसे बाबा कल्चर इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है, हर कोई स्पिरिचुअल गुरु बने जा रहा है, या एस्ट्रोलॉजी वाला एप्स वगैरह आप डाल सकते हो। लाइक दिस इज ऑल्सो एडिंग इकोनॉमी टू द कंट्री, ठीक है। फंक्शनलिस्ट सोसाइटीज ऑल्सो, क्योंकि देयर आर मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट, फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स, एटलीस्ट हम ज्यादा तो नहीं बोल सकते, ज्यादा क्लाइंट्स है फॉरेन के, बट स्टिल वी हैव फ्यू क्लाइंट्स हु आर फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड वी आर अर्निंग डॉलर्स फ्रॉम देम, सो दैट इज अगेन एडिंग अ रेवेन्यू टू आवर इंडियन जीडीपी में कुछ ना कुछ उसका मतलब योगदान है। नेक्स्ट यूल से कि फंक्शनलेस सोसाइटीज ऑल्सो सस्टेन स्टेबिलिटी नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट में विल से कि हिस्ट्री नॉट अ लीनियर, नॉट ऑल सोसाइटीज फॉलो द सेम स्टेजेस। कंक्लूजन विल से मार्क्स ट्रांसफॉर्म कर दिया, मार्क्स ने हेजल्स का डायलेक्टिक्स इनटू अ हिस्टोरियन मटेरियलिज्म, प्लेसिंग इकोनॉमी एंड क्लास स्ट्रगल एट द सेंटर ऑफ द सोशल चेंज। वाइल लेटर थिंकर इसको मॉडिफाई करेंगे, हिज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, इट रिमेन्स अ पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन contemporary society. So that's all for today. Hope so. See you in the next lecture. I think ये भी करा ही देती हूँ, सॉरी, 10 मिनट और 2-3 मिनट और वेयर करूँ, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सीधा। फोर्थ क्वेश्चन से थर्ड का सी है, ये बोलता है कि एग्जामाइन epistemological foundation of qualitative method of social research. Here it says that firstly you have to say examine करने को बोला है epistemological foundation of a qualitative methods of a social research. Okay, first we'll say qualitative research है क्या, रेस्ट क्या है, qualitative research rest on a interpretivist एपिस्टेमोलॉजी फोकसिंग ऑन मीनिंग। कंटेक्स्ट हमारा एंड
सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले वाई एंड हाउ ऑफ सोशल लाइफ। अनलाइक पॉजिटिविज्म जो है सीख करते हैं कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या है सोशल लाइफ, इसके बारे में। तो हियर वेबर का जो वेस्टहैम थ्योरी है, जैसे सोशलॉजी मस्ट इंटरप्रेट मीनिंग इंडिविजुअल अटैच टू एक्शन। सिंबॉलिक interactionism, we'll say Madden Bloomer, they said that society constructed through a interaction and symbols. Phenomenology Scooch, he will say that everyday life is socially constructed. Research must capture intersubjectivity. Ethnomethodology, Graham Finkel बोलेंगे, studies methods people use to produce social order. Hermeneutics, they will say कि interpretations of text, symbol, rituals and cultural understanding. Contextualism, knowledge is situational and meaning vary across culture and time. Reflexivity, Giddens, he'll say कि Anthony Giddens बोलेंगे कि like researchers influences and is influenced by the subjectivity as valid. Subjective experience are not errors but data हैं आपके. Thick perspective हमारे ये Gates बोलेंगे, like Gates, here it is stated that rich contextual accounts explain culture. Here M.N. Srinivas की जो ethnography of the Indian village है, you can give the example of this, and even you can give Howard Becker's की outsiders जो study है, deviance study, you can quote this also. Next you will say कि critics में will say positivism क्या करते हैं, lack reliability and generalization, मतलब basically positivism वाले reliability उसमें बहुत कम मिलती है, as but post positivism में वो मिलती है, and generalizability बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं मिलती नहीं है इसमें। तो जनरल पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं मिलती है, पर पोस्ट पॉजिटिविज्म में वो जनरल, ये दोनों ही क्वालिटी मिलती है, रिलायबिलिटी एज वेल एज जनरलाइजेबिलिटी। तो राइज ऑफ रिसर्च क्या है यहाँ पे, बायस रिसर्चर क्या है, रिस्क जो है रिसर्चर के सारे बायस हैं यहाँ पे, यट कोशिश करेंगे कि वैल्यू न्यूट्रल रहें, पर वैल्यू न्यूट्रल है नहीं वो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू न्यूट्रल रहना पॉसिबल नहीं है। तो yet captures complexity of lived experiences that statistic miss कर देती है। फिर हम conclusion में we can easily say the epistemological base of qualitative methods lies in interpretivism and subjectivity, focusing on meaning and context. While limited in generalization, they provide depth and cultural sensitivity essential for holistic sociology. So that's all for today. I'll see you tomorrow with the same question paper, left out questions of this question paper 2017 paper 1 of sociology. I think few more questions are left. We'll be covering by tomorrow. Okay, bye bye, see you in the next lecture. Keep studying.